नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल दक्षिण के विधायक अग्निमित्रा पाल ने कल जमुड़िया में सड़कों की बदहाली को लेकर तृणमूल कांग्रेस परिचालित प्रशासन पर तीव्र कटाक्ष किया था। उन्होंने कहा था कि जमुड़िया में विधायक से लेकर बोरो चेयरमैन, पार्षद सभी टीएमसी के हैं, यहाँ तक कि आसनसोल के सांसद भी टीएमसी के हैं, लेकिन जमुड़िया में सड़कों की हालत खस्ता हाल है। उन्होंने कहा कि 10 दिनों के अंदर अगर सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो भाजपा की तरफ से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कटाक्ष करते हुए मछली लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि सड़कों की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि सड़कों के गड्ढों में पानी इतना ज़्यादा भर गया है कि वहाँ पर मछली पालन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सड़कों के गड्ढों से 2 मछलियाँ उनको मिली थीं। एक का नाम हरेराम सिंह, दूसरे का नाम शत्रुघ्न सिन्हा था। इसके जवाब में पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा की विधायक ये सब नौटंकियां ना करें। अगर उनको मछली ढूंढना ही है तो वो उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जाएं, वहाँ पर उनको बड़ी बड़ी मछलियाँ मिल जाएंगी। এখানে এসেছিলাম, জামুরিয়ার রাস্তার অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। এত বড় বড় গর্ত এবং জল জমে রয়েছে যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে। তাই আমাদের আন্দোলন যে রাস্তা ঠিক করুন। কোনো দয়া করছেন না, রাস্তাটা ঠিক করে আপনারা কোনো দয়া করছেন না। আপনারা টিএমসির বিধায়ক আছেন, টিএমসির বড় চেয়ারম্যান আছে, টিএমসির কাউন্সিলর আছে, টিএমসির কর্পোরেশনের মেয়র আছে, আর ট্যাক্সের টাকাটা আমাদের সাধারণ মানুষের। রাস্তাটা ঠিক করুন। রাস্তা যদি ঠিক না করেন সাধারণ মানুষ অসুবিধায় পড়ছে। আজকে অসুস্থ মানুষরা, প্রেগনেন্ট মহিলারা খুব সমস্যায় পড়ছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা স্কুল যেতে পারছে না। সুতরাং রাস্তা যদি ঠিক না হয়, ঠিক 10 দিনের মাথায় আমরা আবার আসবো, আবার আন্দোলনে বসবো। দেখুন, এত বড় বড় রাস্তার মধ্যে পুকুর, এটা একটা নতুন কর্মসূচি, দুয়ারে পুকুর বা দুয়ারে মাছের চাষ। এটা মমতা ব্যানার্জি বোধহয় শুরু করেছেন। কারণ পুকুর তো আমরা জানি রাস্তার পাশে হবে, কিন্তু এখানে পুকুরটা হয়ে গেছে রাস্তার মধ্যে। এবং সেখান থেকে আমরা ছিপ ফেলে 2টো মাছও পেয়েছি। একটি বড় মাছ, সেই মাছটার নাম ছিল হরেরাম সিং। মাছটাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোর নাম কী রে? বলে কিনা আমার নাম হরেরাম সিং। আর একটা ছোট মাছ, সে চিৎকার করে বলছে আমার নাম শত্রুঘ্ন সিনহা। এখন শত্রুঘ্ন সিনহা আমি তো জানি আমাদের এমপি সাহেব, তাকে কেমন দেখতে আমরা ভুলে গেছি। তাকে তো দেখতে পাওয়া যায় না। সেই যবে ইলেকশন হয়েছে তখন প্রচারে দেখেছিলাম, তারপরে উনি কখন আসেন, কখন যান, আর আমাদের আসানসোলের মানুষের সমস্যা নিয়ে কোথাও কি তাকে অ্যাপ্রোচ করা যায় এইটুকু আমরা জানি না। তাই আজকে ওই মাছ দুটো ধরা হয়েছে। অগ্নিমিত্রা দিকে বলুন যে মাছ ধরার যদি ইচ্ছা আছে তাহলে বিহার, ইউপিতে, মহারাষ্ট্রে, গুজরাটে যে মাছ ধরুন, বড় বড় মাছ পাবেন। আর এমনিতেই বর্ষাতে রাস্তাঘাট বর্ষাতে একটু নষ্ট হয়, বর্ষাতে গর্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গে যদি কেউ বলে যে রাস্তার খারাপ, আমি বলবো তার চোখে নেবা হয়েছে। তো অগ্নিমিত্রা আদি আসলে সবসময় তো আর আসানসোলে আসেন না, মাঝে মাঝে আসেন, প্রচারে থাকতে হবে, খবরে থাকতে হবে, তাই নাটক। এই নাটকগুলো না করে ওনার নিজের যে বিধানসভা আছে সেখানে রাস্তাঘাটগুলো একটু দেখুন। ওখানে তো আমি মাছ ধরতে যাব, সেখানে অগ্নিমিত্রা পাল একদম বড় কাতলা পাবো। উনি বোধহয় জানেন না
যে ওনার বিধানসভার লোক কিন্তু শত্রুঘ্ন সিনহার কাছে সার্টিফিকেট নিতে যান, রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটগুলো ওনার বিধানসভার লোককে সার্টিফিকেটটা শত্রুঘ্ন সিনহাকে দিতে হয়। শত্রুঘ্ন সিনহা এভরি 15 ডেজ আসানসোলে আসেন। আমরা গর্বিত, আমরা খুশি, আমরা আনন্দিত এরকম একজন সাংসদ পেয়ে। আর এরকম নাটক না করে মানুষের জন্য কাজ করুন, মানুষের কাছে যান, এটা আমার একটা অনুরোধ। आसनसोल नगर निगम के संस्कृति दफ्तर के MMIC गुरदास चैटर्जी के नेतृत्व में आज आसनसोल नगर निगम के एक उच्च अधिकारियों की टीम ने पोलो मैदान का जायज़ा लिया। इस बारे में पत्रकारों से बात करते हुए गुरदास चैटर्जी ने कहा कि नगर निगम की तरफ से 17 लाख रुपए सैंक्शन किए गए हैं, जिससे कि आसनसोल पोलो मैदान या आसनसोल स्टेडियम में रंग रोगन सहित विभिन्न मरम्मत के कार्य किए जाएंगे ताकि स्टेडियम को एक नया रूप दिया जा सके। বহুত দিন পর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার সাহেব আছেন, আমাদের কন্ট্রাক্টর সাহেব আছেন, প্রায় 17 লক্ষ টাকার মতন আমাদের স্যাংশন হয়েছে আর কি স্টেডিয়ামের পিছনে। তো কাজটা 2-1 দিনের মধ্যেই শুভারম্ভ হবে। এই দিকের গ্যালারিটার রং সব মেয়র সাহেব বলেছেন দেখিয়ে দিতে। নালি, আমাদের পিছন দিকে যে রুমগুলো আছে সেগুলো প্রচুর জল জমছে এবং রুমগুলো যা দেয়া আছে, যেমন বাউরি সমাজ, তারপর আপনার দেয়া আছে হিন্দু জনকল্যাণ মঞ্চ, এরকম অনেককেই আমরা দিয়ে রেখেছি। তো সেই ঘরগুলো আস্তে আস্তে ড্যামেজ হচ্ছে, ওই জন্যে বহুদিন পর এই স্টেডিয়ামের কাজ আর কি সুসম্পন্ন হবে। তো মেয়র সাহেব কালকেও এসেছিলেন এই গ্রাউন্ডে, কাল একটা খেলা ছিল, তো বলে ভালো করে এইটা করে দেখ। এইটা হওয়ার পরে আমরা আবার মেয়র সাহেবকে অনুরোধ করব যে পিছন দিকে যে বড় গ্যালারি আছে সেটাও যেন ভালোভাবে কাজ হয় এবং মাঠটা যাতে দেখতে খেলার মাঠের মতন পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারি, সেই চিন্তা ভাবনা নিয়ে আজকে এসেছি। আর আগামী দিনে এই মাঠকে আরও ভালো করার আমরা চিন্তা ভাবনা রেখেছি যে আসানসোলের বুকে পোলো গ্রাউন্ড এই যে মাঠ সেটা যেন কত টাকা বাজেট আছে? এখন আপাতত আমরা 17 লক্ষ টাকা দিয়ে কাজটা আমরা শুরু করব, জিএসটি বাদ দিয়ে 17 লক্ষ টাকার বিনিময়ে আমরা কাজটা করব। এরপরে ধাপে ধাপে এই স্টেডিয়ামের রং চুন সব করা হবে। বলছি দাদা, আপনি এসেছিলেন, এখানে সিকিউরিটি গার্ডগুলোকে দেখা যায়নি গেটের মধ্যে। সিকিউরিটি গার্ডের আমি আজকে নাম নিলাম, আমরা যথাযথ ব্যবস্থা নেব। কারণ আমি এসে 8 ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছি, সিকিউরিটি গার্ড ছিল না। আমাদের যারা স্টেডিয়ামের সিকিউরিটি তারা এখন ছিল, যাই হোক তারা গেট ফেট খুললো। আমি দেখছি, খোঁজ খবর নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নিই। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिल व्यू हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद ICU एंड डायलिसिस यूनिट। हिल व्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिल व्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिल व्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को 4 चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में
आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए 4 चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आज आसनसोल नगर निगम के सामने से ओके रोड मार्ग पर ऑटो चलाने वाले कुछ ऑटो चालकों ने बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा से मुलाकात की। इनकी शिकायत थी कि आसनसोल नगर निगम गेट के सामने कुछ टोटो चालक खड़े रहते हैं और ओके रोड के यात्रियों को भी अपने टोटो में बिठा लेते हैं, जिससे उनके व्यवसाय पर काफ़ी बुरा असर पड़ रहा है। इन ऑटो चालकों की मांग थी कि इन टोटो चालकों के लिए रूट तय किया जाए और ये टोटो चालक ओके रोड के यात्रियों को अपने टोटो में न बिठाएं। हम लोग टेम्पो चलाते हैं ओके रोड। और दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे कॉर्पोरेशन गेट के पास टोटो एकदम लाइन से जाम लगा के रख देता है पूरा। हम लोग उससे तो हम लोगों को कोई झगड़ा भी नहीं है, रास्ता ब्लॉक होता है पूरा और टाइम नुकसान होता है। स्टेशन का पैसेंजर लोग हम लोग को बोलता है आप लोग का ऐसा जाम है कि ट्रेन छूट जा रहा है। तो हम लोग क्या करें, मेयर साहब का गेट जाम है, मेयर साहब तो खुद ही नहीं हटा रहा, तो हम लोग कैसे हटाएंगे। और कोई एक्शन कोई बात नहीं है। हम लोगों का अपना अलग स्टैंड है। हम लोग हाँ हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम लोग अलग से। हम लोग ओके रोड। हाँ हम लोग 63 आदमी। हाँ हाँ पैसेंजर का परेशानी बड़ी। पैसेंजर बोलता है कि इतना जाम है, तुम लोग बोलता नहीं। हम लोग क्या करेगा, मेयर साहब बोलते ही नहीं तो हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग आए थे यहाँ मेयर साहब से, मेयर साहब नहीं है तो डिप्टी मेयर साहब से बात किया, निकाल रहे। हाँ हाँ तो यही बात हुआ कि ठीक है हम बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जाम नहीं लगेगा। बोला आप लोग का भी तो गाड़ी डिस्टर्ब होता है, जाम लगता है, आप लोग भी नहीं कुछ बोलते हैं। हम लोग पैसेंजर बार बार बोलता है तो हम बोले ठीक है हम मेयर साहब से बात करेगा क्या है। हम लोग को यहाँ तो जगह रोड ठोक क्लियर करा है, स्टेशन का ट्रेन छूट जा रहा है, मिस कर रहा है। रूट का मतलब वो लोग बहुत सा गाड़ी जो टोटो है वो हम लोग का भी रूट में चला रहा है, पैसेंजर लेकर भाग रहा है। हम लोग मना करते हैं कि मेरा पैसेंजर मत बैठा, तुम अपना जो बैठाना बैठाओ। भटका है, पुराना स्टेशन है, ओल्ड स्टेशन है, उधर का बैठाता है बैठा, हमको कोई मतलब नहीं। हम लोग का ओके रोड का पैसेंजर आप मत बैठाइए। वो तो आपस में लड़ रहा है, वो लोग वो टोटो वाला अपने में लड़ रहा है, हम लोग वही झमेला का चलता है। हम लोग बोल रहा है कि तुम लोग का चक्कर में तो हम लोग भी फंसेगा ना, बोलेगा टेम्पो वाला भी करना है। इसलिए हम लोग बोला कि हम लोग ऑटो में टोटो का झगड़ा में हम लोग को ढुकना नहीं है। हम लोग का खाली पैसेंजर मत आप उठाओ, तुम लोग जिधर का उठाना उठाओ, पूरा रोड जाम करके रखो, हमको कोई फर्क नहीं। फिरोज আপনার সঙ্গে দেখা করতে হচ্ছে কি বিষয় নিয়ে এসেছেন? অ্যাকচুয়ালি আসানসোল শহরে যে টোটো সংখ্যা সেটা অত্যধিক বেশি, শহরের ওপরে একটা লোড পড়ছে। আমরা চাইছি রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে এটা একটা সিস্টেমে নিয়ে আসতে, বেকার ছেলেদের যাতে রুজি রোজগারও না মরে, আর শহরের যেন একটা ব্যস্ত শহর যেন কোনো প্রকার জনজীবন অসুবিধা না হয় জনজীবনে। দেখা যাচ্ছে কি কর্পোরেশনের সামনে প্রায় টোটো আর অটো চালকদের মধ্যে হাসতাহাসতি মারপিট হচ্ছে, এই দুদিন আগেও এমনি হয়েছিল। সে বিষয়ে কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কোনো পদক্ষেপ নিয়ে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি, কর্পোরেশন গেটের সামনে সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টে পর্যন্ত কোনো টোটো অটো থাকবে না। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যেসব রুট আমরা আরটিওকে দিয়েছি এখনও অ্যাপ্রুভ হয়ে সেসব রুট আসেনি, এই রুটটা যদি আমরা যত শীঘ্র সম্ভব পেয়ে গেলে
আসানসোল শহরের এই যানজট মুক্ত হবে। आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म के सामने INTTUC नेता राजू अहलुवालिया के नेतृत्व में हॉकरों को लेकर एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर श्रमिक नेता ने कहा कि जिस तरह से RPF द्वारा हॉकरों पर अत्याचार किया जा रहा है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने RPF इंस्पेक्टर सोमनाथ पारिक को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि उनके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है। वो जब बैठक होती है तब तो कहते हैं कि हॉकरों की बातों को, उनकी समस्याओं को संजीदगी से देखा जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से RPF द्वारा हॉकरों पर अत्याचार किया जाता है। राजू अहलुवालिया ने कहा कि इससे पहले जब रेलवे प्रबंधन से बैठक हुई थी तब DRM, सीनियर कमांडेंट आदि ने हॉकरों की सूची मांगी थी, जिससे ये पता चल सके कि आसनसोल रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में कितने हॉकर हॉकरी करते हैं। संगठन की तरफ से वो सूची प्रदान भी की गई थी, जिससे ये स्पष्ट हो गया था कि ये हॉकर बीते लगभग 40 वर्षों से यहाँ पर हॉकरी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हॉकरों पर अत्याचार बंद नहीं हो रहा है। जिस तरह रेल प्रशासन जो रेलवे हॉकर पर जुल्म कर रहा है, प्रत्येक दिन कई बार हम लोगों के साथ ये RPF के इंस्पेक्टर सोमनाथ पारिक बैठक किए कि हम इसके बारे में देखेंगे, हॉकर पर जुल्म नहीं होगा, लेकिन हमेशा उन्होंने जो बात का वादा किया उसको वादा खिलाफी की। कुछ दिन पहले भी RPF के अधिकारी हम लोग के साथ बैठे थे, उनसे यही बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि आपके हॉकर्स का लिस्ट हम लोग को जमा कीजिए, कि आपके हॉकर्स कितने। हम लोगों ने लिस्ट भी जमा किया, DRM, सीनियर कमांडेंट और हम लोगों ने जो उच्च अधिकारी है उनके पास भी लिस्ट भेजा कि ये हॉकर्स 30 से 40 सालों से आसनसोल रेलवे स्टेशन एवं ट्रेनों में हॉकरी करते हैं। इसके अलावा, इस लिस्ट के अलावा अगर कोई हॉकर है, बेआईनी हॉकर है, जिसको RPF जो मोटा पैसा लेकर स्टेशनों में हॉकरी कराती है, उसको बंद कीजिए। जो हमारा लीगल जो हॉकर है, जो लिस्टेड हॉकर है, जो कई सालों से हॉकरी करते आ रहा है, उसको आप परेशान नहीं कर सकते हैं रेलवे स्टेशन या ट्रेन पर। लेकिन ये जो रेल प्रशासन का अधिकारी है, यहाँ का इंस्पेक्टर सोमनाथ पारिक, जो हमारे संगठन, हमारे दल की नेत्री के नाम से, हमारे तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के नाम से अश्लील भाषा का प्रयोग करता है, हम लोग उसको बता देना चाहते हैं, अरे इंस्पेक्टर तुम सुधर जाओ। रेल स्टेशन के अंदर अगर किसी तरह हमारी किसी भी नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता के नाम से अश्लील भाषा का प्रयोग किया तो तुमको जो है हम लोग ये रेल स्टेशन के बाहर ही हम लोग देख लेंगे और तुम लोग को देखेंगे तुम्हारे पास कितनी RPF की फोर्स है और हमारा जो तृणमूल कांग्रेस का कितना कर्मी है, तुमको अंदाजा नहीं है। इसके पहले भी बहुत लोग ऐसे आए, लेकिन सोमनाथ पारिक हमारे तृणमूल कांग्रेस के प्रति अश्लील भाषा का प्रयोग करता है, हमारे नेताओं के भाषा के प्रति अश्लील भाषा का प्रयोग करता है और रेलवे हॉकर को मारता है। ये मानवाधिकार नियमों का उल्लंघन है। आप RPF के इंस्पेक्टर हैं, आपको ये सोचना होगा, कानून के दायरे से अगर आप बाहर आएंगे तो आपको हम लोग जवाब देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये आपको सोचना होगा। आपकी कोई बात का हम लोग को विश्वास नहीं है। जब से हम लोग यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, 40 साल 42 साल जो हॉकरी कर रहे हैं, आपके जैसा निकम्मा इंस्पेक्टर हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है, जो सिर्फ नशा खुरानी पॉकेट मारो का चंगुल का जाल फैला दिया है रेलवे स्टेशन पर और अपना जो है सिर्फ मांसाहार उठा के खाता है और जो चोरों को एवं नशा खुरानी लोगों को जो है उसको मदद देता है। हम लोगों के पास इसका भी प्रमाण है। हम लोगों ने GM विजिलेंस ईस्टर्न रेलवे को इसकी सूचना दी है और इसकी लिखित शिकायत भी की है। कैसे इंस्पेक्टर जो रेल की छवि खराब कर रहे हैं, जो यात्रियों के साथ धोखा कर रहे हैं, जो रेलवे हकों पर जुल्म कर रहे हैं, उस पर आप नकेल कसिए, नहीं तो हम लोग बेहतर आंदोलन पर उतर गए तो रेल का एक भी अधिकारी रेल कार्यालय नहीं पहुंच सकेगा। हम लोग रास्ता रोककर हम लोग परिवार समेत वहां बैठ जाएंगे। हम लोग चाहते हैं कि रेल प्रशासन हमारे हॉकर का जो समस्या है, जो हम लोगों ने लिस्ट दी है, उसका जांच कर हमारे हॉकर्स जो है भाई, उनको हॉकरी करने के लिए जो है जो सिस्टम से चल रहा था उनको काम करने दे या उनको लाइसेंस दे, उनको नियमित करे। ये एक निकम्मी जो कुछ लोग इंस्पेक्टर के जो इंस्पेक्टर है, ये मुझे तो लगता है ये बीजेपी का दलाल है। ये बीजेपी का दलाल को शिक्षा देना हम लोगों का काम है। ये पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती है, यहाँ की नेत्री ममता बनर्जी है, गरीबों की नेत्री ममता बनर्जी है और यहाँ का भूमिपुत्र गरीबों का जो
नेता है वो मौलाई घटक है, हमारा यहाँ का गरीबों का नेता अभिजीत घटक है। उनको सोचना होगा कि हम लोग ये इंस्पेक्टर को समझा देने आज आए हैं, चेतावनी देने आए हैं कि तुम जितना जुल्म करना है करो, जिस दिन हम लोग का जुल्म सिर से पार हो जाएगा उस दिन तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम्हारी नौकरी रहेगी कि नहीं रहेगी। ये तो बात की बात है, लेकिन तुमको रेलवे स्टेशन से हम लोग बाहर निकलने नहीं देंगे। तुम क्या कर सकता है? बहुत लोगों पर झूठा मामला करता है, 144, 147, 145, ये जो झूठा मामला करता है लोगों पर। लेकिन चोर आपने देखा है, कई सालों से हम लोग आसनसोल रेलवे स्टेशन में देख रहे हैं, नशा खिलौनी गिरोह का कोई अपराधी, बड़ा अपराधी को इन्होंने पकड़ा नहीं आज तक। पॉकेटमार का जो सरदार है उसको नहीं पकड़ा, उनको ये साथ लेके घूमते हैं। तो इनको सोचना होगा कि रेलवे हॉकर जाग गया है। हम लोग 1 तारीख को, जेतु 30 और 31 को रक्षाबंधन है, सब लोग त्योहार में अपना परिवार के साथ रहते हैं। 1 तारीख सुबह हम लोग 10 बजे से DRM रोड के जाने का जो रेल का मेन रास्ता है, मुख्य रास्ता है, हम लोग परिवार के समेत उस रास्ता में 10 बजे से धरना देंगे। और हम लोग जो आम जनता उनसे हम लोग उनसे माफी मांग लेना चाहते हैं। हम लोग मजबूर हैं, हमारे हॉकरों की रोजी रोटी छीनी जा रही है, उनका बच्चा, और हम लोग को भी मालूम चला कि बहुत से ऐसे हॉकर के बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा सक रहे क्योंकि उनका फीस नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनका पैसा नहीं है, उनका रोजगार नहीं हो रहा है। या 1500-1600 रुपए करके पॉकेट से छीन ले रहा है ये RPF इंस्पेक्टर और ये RPF के कुछ अधिकारी। तो ये बहुत जुर्म की बात है। ये वो ना समझे, उनको समझा देना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल है और यहाँ की नेत्री ममता बनर्जी है, गरीबों की नेत्री है। उनको हम समझा देना चाहते हैं, तुम्हारे इससे बहुत इंस्पेक्टर आए चले गए और तुम जो भाषा का प्रयोग करते हो, तृणमूल कांग्रेस नेताओं का सब्र का बांध अगर टूट गया तो तुमको सोचना पड़ेगा। भाषा को संयम में लाओ और यात्रियों की सुरक्षा पर ध्यान दो। और चोरों के साथ, पॉकेटमारों के साथ, नशा खिलौनियों के साथ जो अपनी साठगांठ है उसको बंद करो। हम लोग का प्रमाण है, वो प्रमाण हम लोग GM विजिलेंस को ऑलरेडी दे चुके हैं लिखित में, और इसकी हम लोग जांच चाहते हैं। 1 तारीख को हमारा तमाम हॉकर्स, सिर्फ हॉकर्स नहीं, हमारे जो परिवहन कर्मी हैं, विभिन्न हम लोग का संगठन है, सारे लोगों के परिवार सह हम लोग RPF के जो है, जो मुख्य द्वार जो है रास्ता है, उसको हम लोग रोकेंगे। हम लोग बैठ जाएंगे जब तक इसका समाधान नहीं होगा। हम लोग अपने परिवार के साथ सड़क पर बैठकर हम लोग विचार चाहेंगे DRM से, इसका जल्द से जल्द समाधान कीजिए, नहीं तो इसके बाद हम लोग और बेहतर आंदोलन में उतरेंगे। ये तो हम लोग सिर्फ कुछ दिन पहले टाइम चला कि हम लोगों ने सिर्फ उनको कास्टिंग दिखाया था, पिक्चर अभी दिखाना हम लोग का बाकी है। हम लोग का संयम का बांध अब टूट रहा है, अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका जवाब हम लोग 1 तारीख को देंगे सुबह 10 बजे, जो हमारा 13 नंबर मोड़, उसके बाद हमारा जो उधर से आता है, दोनों रास्ता हम लोग ब्लॉक कर देंगे परिवार सह हॉकर्स को लेकर। उसके बाद हम लोग किसी भी रेल प्रशासन अधिकारी को DRM ऑफिस। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे, और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं, और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলব না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো,
और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।